Good morning, viewers. Welcome to India's foremost Christian podcast with Paulina Baubles. As you can see, Paulina has just come in from France, and we want you to like, share, subscribe. If you want to abuse us, feel free to abuse us in the comments. It still helps us. So make that extra effort and abuse us. And thank you for joining premier Christian podcast dedicated to converting the native black, uncivilized heathen savages to the path of the one true Lord. Okay, and please do share, like, and subscribe to my channel, Maskutaroji. He forgot to say that. Anyways, I so we are said going to that. discuss. Okay, you didn't say Maskutaroji. You Yes, forgot. Master Taroji. Why? Because we pretend, and then really we're trying to convert you. Yes. Now, hi, Abhijit. Hello. Hello, Paulina. Okay, so we're going to discuss Trump and Melania. Okay. So Kya now bolte? there's this he's very popular among youngsters. Crystal Clear is his handle's name on Twitter. He's written a very nice tweet which I'm going to quote. I really liked it, and he really summed up this pardon thing that's going on in America. He said, "Heard of anticipatory bail, but pardon is quite new. भारत अमृत काल में है और अमेरिका पार्डन काल में है. Biden pardoned many while going, Trump pardoned many while coming." So now, please explain. Look, we now know, based on the pardons of the Biden regime, that most of all the prosecutions of Jan 6th were completely fraudulent because every member of that committee, including the two Republicans, Liz Cheney and Adam Kinzinger, they had fabricated evidence, they had suppressed evidence, they had not followed the due process of law, etc., etc., etc. And it was high time that those people got pardoned because it was a complete travesty of justice. Number one, there is a huge difference between what Biden has done and what Trump has done. Trump has set right a travesty of justice. What Biden did was to give pardons to his cronies who had attempted to sabotage the law, had lied, had suppressed evidence, every single one. And imagine the rest of his family. Hunter Biden, to sabko pata is a pedophile and a drug dealer and a criminal. He's forgiven every member of his family for crimes we don't even know what they did. Yeah. And for any crime over a 10-year time period. So you understand, this has been going on. This fellow is corrupt as hell. And that is why he forgave everyone. Trump has set right something. There is a huge qualitative difference between the pardons. Okay. The So now, Biden if family is a crime family. They're like Daud Ibrahim ka pura khandan. what a comparison. So Hmm. now, Trump can't say कि अब इसको खत्म कर दो, like दोबारा cases शुरू हो, or it's final now. Hmm. नहीं, It's Trump look, you're not saved from civil suits and things like that, थोड़ा हिंदी right? में भी बोल दो. My viewers, they want you to talk in Hindi. Oh, Speak Hindi. I want you to talk in Little bit, vernacular. yeah, थोड़ा थोड़ा आधा हिंदी आधा इंग्लिश. Yeah, they request me देखो always tell me अभिजीत को बोलो थोड़ा हिंदी भी बोलेगा. देखो मैं vernacular मेरा इतना अच्छा नहीं है, but देखो अमेरिका बहुत एडवांस्ड कंट्री हैं जिनके बहुत सिविलाइज्ड लॉज हैं जो आप जैसे बंदर लोग समझ नहीं पाते हैं. तो मैं कोशिश करता है बंदर लोग का लैंग्वेज बोलने का. क्या होते हैं कि अमेरिका में जो ये पार्डन करने का जो क्षमता होता है प्रेसिडेंट का, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. उसको कोई टाला नहीं जा सकता है.
और फिर क्या होने हैं तुम अलग इंग्लिश में उपाय, बोलो। अलग उपाय मिलता हाँ। जो अलग उपाय हाँ वो हैं हम सिविल सूट कर सकता हाँ। यानी कि ओके। पायल बयाना ने मेरे मेरे नाना जी का कत्ल किया हाँ, और मोदी जी ने आपको पार्डन दे दिया हाँ। अब मैं आपको फिर से जेल में उस क्राइम के लिए नहीं ले जा सकता हाँ। नहीं सकते, ओके। और देखिए, अगर पार्डन नहीं दिया जाता हाँ, तो मैं आपको और केस चल नहीं पाया हाँ सुप्रीम कोर्ट में। बट मेरे को सबूत मिलता हाँ कि तुमने पर्जरी किया, यानी कि तुमने कोर्ट में झूठ बोला हाँ, तो उस पे मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से क्रिमिनल केस कर ओके। सकता हूँ। ठीक है। ओके, और अंडरस्टूड। जो पर्जरी का जो यानी कि कोर्ट में झूठ बोलने का जो ये होता हाँ, उसका वो सजा क्राइम के बराबर होता है, यानी कि ओके। उस कत्ल का ही सजा आपको झूठ बोलने का फिर मिल सकता है, ओके, अंडरस्टूड। उसके बराबर। ठीक है। बट इसमें उसके लिए भी प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता हाँ। ओ। ठीक है। सब चीज आपका माफ है, कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है। बट मैं क्या कर सकता है कि मैं सिविल, क्रिमिनल नहीं, सिविल केस ले आ सकता हूं आपके खिलाफ कि आपने मेरे नाना जी का कत्ल करके मेरा सब अर्निंग सब कुछ बिगाड़ दिया है, मेरा बहुत मेंटल डिस्ट्रेस किया है। मेरे को साइकाइट्रिस्ट में कोई झूठे साइकाइट्रिस्ट से 10 करोड़ का बिल लाएगा हाँ, एंड बोलेगा कि ये सब इसके ये पॉलिना की वजह से हुआ हाँ, एंड तुम्हारे को मैं सिविल सूट में ले जाके पैसा निकाल सकता हूँ। तो मैं सोच रहे हैं कि ये फाउची जो कत्लकारी हैं, और जो ये लिज चेनी और जो एडम किन्जिंगर और ये जैन 6 कमेटी हाँ, ये जो सब फैमिलीज रिलीज हुए हैं, ये इनके खिलाफ क्लास एक्शन सूट लाया है एंड लाएंगा, एंड उनको फाइनेंशियली बर्बाद कर देगा। ओके। अच्छा, now you tell me one thing. Can Trump reopen the cases in the sense of Ukraine, media, Palestine protests, illegal immigrants, relationship with India? But what all things he can start doing now? Bureaucracy. How is Trump going to handle all this? And with Iran, with Elon Musk, what is going to happen in America? I don't know what's going to happen. But going by the first day, first 2 days, it's going to be a roller coaster ride. Okay. Uh, I don't know if you saw, but Jaishankar has said we spoke about Bangladesh to this thing. So Bangladesh ka KMBK, you know what that means, full form of Hmm. KMBK. हाँ, तो Yeah, yeah. वो मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है। बांग्लादेश आखिर ऑफर क्या कर सकता है अमेरिका को? हम तुमको ज्यादा टेक्सटाइल देंगे, हम तुमको ज्यादा ये टी पॉट और टी कप देंगे। तो बांग्लादेश इज एन इम्पोर्टेंट दैट वे, उनका बार्गेनिंग स्ट्रेंथ नहीं है, और ट्रम्प बिजनेसमैन है ना। तो ये है। दूसरी बात क्या है कि इसराइल पैलेस्टाइन में सबको पता है कि हमास ये सीजफायर तोड़ने ही वाला है। ठीक है। तो इसराइल भी फिर से शुरू कर देगा। और प्रॉब्लम क्या होगा कि इस बार जब हमास सीजफायर तोड़ेगा, तो ट्रम्प बोलेगा कि ये मेरे खिलाफ एक, साजिश तुमने है टाइप्स। साजिश नहीं, तुमने मेरे को इंसल्ट किया है, इसराइल ओके। और मारो। दूसरा चीज उसमें क्या था कि उन्होंने ईरान पे कोई डील कर रखा है, क्योंकि जो अरब स्टेट्स थे वो बोल रहे थे कि देखो भाई, हम ईरान पर तब तक हमला नहीं कर सकते जब तक इसराइल ना रोकी, क्योंकि फिर लगेगा कि हम इसराइल के साथ और इसराइल के बुलावे पे हम ईरान पे हमला कर रहे हैं। मेरे को लगता है 1 साल के अंदर अंदर ईरान के जो सब परमाणु हथियार के जो फैसिलिटीज है, उन पे जबरदस्त हमला होने वाला है। शायद 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर चले जाएंगे गल्फ में, और ये बहुत ही अ, निकाल देंगे उनके परमाणु फैसिलिटीज को।
और शायद ईरान भी ये जानता है, इसी वजह से ईरान का भी एक सॉर्ट ऑफ वो एक न्यूक्लियर वेपन्स का डायलेमा को हिंदी में क्या कहते हैं? मुश्किल। मुश्किल नहीं, रुको। मतलब मुश्किल नहीं, मुश्किल इन द सेंस, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिसका कोई रुको, क्योर नहीं इसीलिए है। इसीलिए गूगल ट्रांसलेट है, मैं देख के बताता ही तुमको। डिलेमा में बड़ी सोच समझ असंभ दुविधा, दुविधा में है। दुविधा, हाँ हाँ हाँ, दुविधा, हाँ। यूज देम और लूज देम, यानी कि जब आप इंग्लिश भी बोल बीच बीच में, इट्स ओके, हाँ। दुविधा में हैं कि वो यूज देम और लूज देम, यानी कि इफ यू ओके। डोंट यूज योर न्यूक्लियर वेपन्स, तो जब दुश्मन तुमको हरा देगा, यू विल लूज योर न्यूक्लियर वेपन्स विल बी टेकन अवे। तो ईरान का ये है कि उसको पता है कि अमेरिका हमला करने वाला है, तो उसपे ये अब ये हो रहा है कि भाई हमको जल्दी से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने हैं। अब जब जल्दी से आप न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करोगे तो अमेरिका बोलेगा, हाँ देखो मैंने बोला था ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अब बम बरसाओ। तो ये जो दुविधाजनक स्थिति जो है, या मैं क्या अच्छा हिंदी बोलते हैं, देखो मैं या गोरे या आदमी के इम्प्रेस टोटली। मैं गोरा एक्सेंट के आदमी साथ, वो भी एक्सेंट के साथ। मैं गोरा आदमी आके तुम नेटिव से बेहतर हिंदी बोलते हैं। मेरे या पूर्वज यूक्रेन से आके देखो तुम्हारे से बेहतर हिंदी बोलते हैं। तो ये जो दुविधाजनक स्थिति है उसमें से अपने आप को निकालने के लिए आ, ईरान क्या करे? या तो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और उनका सब न्यूक्लियर फैसिलिटीज विल गेट बॉम्ब्ड, या न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोशिश एक्सेलरेट करो एंड स्टिल गेट योर न्यूक्लियर फैसिलिटीज बॉम्ब्ड। ओके। एंड है ना? यूक्रेन। यूक्रेन आई रियली डोंट नो, क्योंकि देखो यूक्रेन में ना इट इज वन ऑफ दो सिचुएशंस वेयर द टू सॉल्यूशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर साइड। यूक्रेन को क्या चाहिए कि उसका अपना पूरा जमीन वापस चाहिए, दनियत्स्क, लुगांस्क और क्राइमिया। क्राइमिया तो 2014 में रशिया ने हड़प लिया था, एंड दे वांट फ्रीडम की नेटो के मेंबरशिप हो जाए। बट ऑन द अदर हैंड इसमें क्या प्रॉब्लम है रशिया में? रशिया से भाई क्राइमिया और जो दनियत्स्क लुगांस्क है ये रशियन मेजॉरिटी एरियाज हैं जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। सो देयर इज नो चांस इन हेल यू आर गेटिंग दोज पोर्शंस बैक। सेकंड, देयर इज नो चांस इन हेल दैट यू विल एवर बी अलाउड टू जॉइन नेटो। अब जो गिव एंड टेक होता है इसमें आप कहां देख रहे हैं कि गिव एंड टेक का कोई ये है? तो ट्रंप ने बोला है कि भाई आके डील करो हमारे साथ। अब डील बस मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, मेरे हिसाब से एनी डील दैट ट्रंप अग्रीज टू विल हैव टू फॉलो द रशियन थिंग कि दनियत्स्क, लुगांस्क, क्राइमिया गया और यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, और एटलीस्ट द फाइटिंग विल स्टॉप। And Abhijit, now this is a very important question for me, and everybody wants to know क्या होगा. Who's going to rule America? Elon Musk or Trump? Or Elon, मतलब Trump will be like Manmohan Singh, and Trump, Elon Musk will be. there is no doubt that it is Trump. Because Okay. remember, Trump has already dealt Elon Musk two heavy blows. First is EV mandate खत्म कर दिया, ठीक है, which means and he announced it in his inaugural speech. EV mandate खत्म कर दिया, तो एक हाथ से लिया, दूसरे हाँ. हाथ से स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया कि हम मार्स जाने वाले हैं और आप वो लीड करने वाले हो। दूसरा ब्लो कल पड़ा है ये स्टारगेट अनाउंसमेंट के साथ एआई पे, वेयर ओपन एआई विल टेक द लीड. And that Sam Altman is like Zuckerberg. He's a B grade con artist. Chat GPT is shit. Everybody knows Chat GPT is shit. They are fighting a copyright violation case in India where they stole ANI articles, and they're now claiming in an Indian court that they cannot remove ANI articles because it breaches their legal obligations in America, which actually has IPR protections. They're also claiming Indian courts have no jurisdiction. ठीक है, सो ये सब प्रॉब्लम है, बट ट्रम्प इज वेरी मच इन चार्ज।
Okay. I somewhere, I get that feeling that Elon Musk is going to take a lot now back from Trump, and even he's the kind of tweets he writes, posts, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका बड़ा important रोल होएगा ट्रम्प गवर्नमेंट में, ट्रम्प की गवर्नमेंट में. Hmm. Okay. Now, Abhijit, your tweet now. This is your tweet. Can you see about Yes. जैसे किसके बारे में लिखा है आपने? Wherever did Ilhan Omar go, I was expecting her to detonate her C3 vest or at least go off on a deranged rant. I guess she doesn't want to get deported to Somalia with her brosband. Okay. Now explain. क्योंकि क्योंकि उसका भाई ही उसका पति भी है, पता है ना आपको? हाँ, या हाँ. उसका सगा भाई से उसने शादी करके बच्चे पैदा किए. You know this? Yeah, हाँ. Everybody हाँ, knows about it. हाँ. और मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि ये औरत एक सुसाइड बॉम्बर बनने वाली है. अभी डरी पड़ी हुई है, बहुत चुप है, क्योंकि इसको पता है कि इसने अपने इमिग्रेशन में सब झूठ बोल के रखा था और इसका She, सिटीजनशिप निकाल के ये वापस सोमालिया भेजी जाएगी. सोमालिया में क्या करेगी बेचारी? you think so? They'll do it. Trump can do it. Will he do it? She lied on her immigration. Yeah. Let's be very clear about this. Okay. So the husband's status is completely false. उसको डर है, इसीलिए चुप है. Now you tell me about it. Will Trump take revenge for what Democrats did to him, banned him on social media? That's really humiliating. डायरेक्ट रिवेंज नहीं लेगा, उनको जेल में नहीं डालेगा, पर पता है क्या करेगा वो मैं जैसे मैंने बोला था ना, वो सिविल सूट सब करना, वो सिविल सूट्स हाँ. करेगा उन पे, Okay. फुल सिविल सूट्स करेगा, उसमें उनको और बैंक फंसाएगा उनको. इफ ही स्मार्ट दैट्स व्हाट ही डू. दैट्स वन वे ऑफ ओवरकमिंग द प्रेसिडेंशियल पार्डन्स. And now this. ये क्या है? Melania's दिखाई नहीं दे hat. रही है. Melania's hat. They've compared it to that movie Yeah, I Vendetta, don't know why that she's all set. What does it symbolize? Is she all set to take revenge for what they did to her and her husband and her family? I hope so. There's nothing better than a revenge movie, but I don't think it is. I don't think it is. कुछ और है. Okay, but just like that, somebody wrote that she's mourning her mother of somebody who died in her mother or father. अच्छा, I अब don't एक know. और मुझे बताओ. Trump coming to White House and recognizing only two genders. What does it mean for the woke left? Boss, the woke left is destroyed. ये पूरा अब देख लो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इसका डीप इम्प्लीकेशंस देख लो. जब पूरा डीईआई डिसमेंटल हो रहा है, डीईआई का बिगेस्ट एम्प्लॉयर सरकार था, यूएस सरकार, और जो भी हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, येल में ये डीईआई वाली ह्यूमैनिटी डिग्रीज बिके जा रहे थे, जेंडर स्टडीज करके, डिस्क्रिमिनेशन स्टडीज करके, वो सब रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म होने वाला है, क्योंकि जब सबसे बड़े एम्प्लॉयर और बहुत सारे बाकी कंपनीज, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, ऑल ऑफ देम हैव सेड दे आर डिसमेंटलिंग देयर डीईआई स्ट्रक्चर्स. जब सब डिसमेंटल कर रहे हैं, आप कैसे एक कोर्स को भेज सकते हो जिसका कोई एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है ना? सो मजा मजा बहुत, अभी और बहुत कुछ होने वाला है, आप देखते रहो, बहुत मजा आने वाला So you're on a rampage, Abhijit, on Twitter. तुम तो पीछे ही पड़ गए, and the kind of replies you give to people and your quote tweets are like fantastic. I keep laughing, I keep smiling at this thing. अच्छा, last question. Last time when Trump was the president, he stopped Pakistan's funding. Where do you see it going now for radicals and left? है. Repeat. I said when last time when Trump was the president, he stopped funding Pakistan. Now, where do you see, if he stops funding Pakistan or like this thing, where do you see it going for the radicals and left now? Radicals and left where?
मतलब व्हाट विल हैपन टू देम? पाकिस्तान को फंडिंग करते करते सब सब पैसे खाते हैं ना बीच में। रेडिकलाइजेशन तो बढ़ती है ना, तो and that देखो, indirectly that money goes to the left also. सो रिमेंबर इवन बाइडेन डिडंट फंड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को जो वैल्यू है अमेरिका का, वो खत्म हो चुका है। ठीक है। ओके। वो कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो तालिबान उन्होंने ही पाल के रखा था, अब तालिबान उन्हीं के हाथ काट रहा है। पाकिस्तान के हाथ काट रहा है। ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आई डोंट नो व्हाई इंडियंस डोंट लाइक तालिबान। तालिबान बहुत ही सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द अफगान कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। these ओके। things are all, it's cultural relativity. uh, हाँ, we should appreciate this. An Afghan woman is a very free woman. ओके। Okay. बिलीव यू, बिलीव यू। Yeah, I fundamentally believe that women in Afghanistan have more rights relative to the cultural situation, the cultural context of Afghanistan, than Indian women have rights in India or American women have rights in America, comparative to their cultural context. ओके। Hmm. We have to measure women's rights in context to their own cultural norms, ethos, and, like I said, the cultural context. Okay. The Taliban are not Islamists; they are secular. We should all support them. But the main funding for Indian liberals was actually coming from this George Soros network and things like that. Or Adi Achins told me something very interesting. In the last 10 years, George Soros ka jo total uh, properties hai, they've come down from 20 billion to about $7 billion. So he's lost a lot of money. और देखिए, अभी ये एंसन कैपिटल का पता लगा कि वही ये हिंडनबर्ग चला रहे थे पीछे से। महुआ मोइत्रा जी का क्या होने वाला है अभी, बिकॉज एंसन कैपिटल इज रन बाय पाकिस्तानीज। You think Modi is going to do anything to Mahua आई थिंक, Moitra and all? देखो मोदी का मैंने एक चीज समझ लिया है। पहले 8-9 साल जब तक राम मंदिर बना, मैं उनको गाली देते रहा। पर जब राम मंदिर बन गया, तब से मैंने कोई गाली दिया है मोदी को? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अब समझता हूं कि मोदी को जो बोलता है बंदा, वो करता है। Don't micromanage. When he does what he say he'll do. Yeah, see, even I've stopped criticizing him now. ठीक है। So he will do what he wants to do when he wants to do it, and you just have to trust him, because his first job is to win the goddamn elections. If you don't win the elections, you can't do anything. Can't do anything, yeah. है ना? So uh, I, if he says he's going to do it, he's going to do it. बस। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपने समय निकाला अपना और मुझको इंटरव्यू मैं दिया। हमेशा हर क्रिस्तु चैनल के लिए समय निकालता हूँ, जो इस अब तो मैं देश के बर्बरों को एक सभ्य अ, अ, एक सभ्यता देना चाहते हैं। तो अब आप कन्वर्ट होएंगे? मैं आपको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। मैं तो ऑलरेडी कन्वर्ट हूँ। वो संजय दीक्षित की तो बस पास्टर है, मैं तो कार्डिनल हूँ। ओके। थैंक्स सो मच अभिजीत, थैंक यू। यीशु की कृपा नमस्कार, हम सब, आप सब पे। हर 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 महादेव। यीशु 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 यीशु। को बुलवा दिया ना। हाँ।